Hey guys, good evening. Today we are going to start with the liquid ammonia. Liquid ammonia is one of the most extensively studied non-aqueous solvents. ठीक है, कल हमने non-aqueous solvents की बात की थी. The solvents which are other than water उसको हम non-aqueous solvents बोलते हैं. It is now used as a highly used solvent and a reaction medium for many types of organic and inorganic synthesis. It is the most of the physical properties resemble those of the water as given in the table. Now, what are non-aqueous solvents? Non-aqueous solvents are the solvents which are other than water, उसको हम non-aqueous solvents बोलते हैं. Comparison आगे हम करेंगे comparison of the properties of the liquid ammonia and water. The comparison of the properties of liquid ammonia and ammonia क्या होता है? NH3 is ammonia and water reveals the following points. Liquid range. The melting and boiling points of the liquid ammonia are lower than those of the water. ठीक है, क्या कहते हैं? The melting and boiling point of the liquid ammonia are lower than those of the water. In liquid ammonia, the liquid range is from the -77 to 33 degrees Celsius. Therefore, it prevents some handling problems. Therefore, some precautions have to be taken while using liquid ammonia as a solvent. It is generally handled in cooled vessels, and nowadays a wide range of techniques have been advanced for handling it. ठीक है, liquid ammonia में कहते हैं the melting and boiling point of the liquid ammonia are lower than those of the water. In liquid ammonia, the liquid range is from the -77 to 33 degrees Celsius. Therefore, it prevents some handling problems. So some precautions have been taken using liquid ammonia that is stored in the cooled vessels, and nowadays a wide range of techniques have been used for handling it. Now, how do hydrogen bonding? Like water, the liquid ammonia is associated solvent through hydrogen bonding because it is a strongly electronegative एलिमेंट नाइट्रोजन. इसमें क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नाइट्रोजन होता है. हाउएवर द अमोनिया मॉलिक्यूल्स आर लेस strongly associated because the nitrogen is less electronegative than oxygen, and therefore the NH and OH bond, the freezing point and boiling point of the ammonia are less. Since the ammonia is less associated than water, it is the better solvent for the organic compounds. Next is dielectric constant. The dielectric constant of the ammonia is lower as compared to the water, suggesting its lesser tendency to dissolve ionic compounds. Liquid ammonia is therefore a pure solvent for the ionic substances. Soluble salts include most ammonium salts, nitrates, thioneins, iodates, fluorides, and many oxysalts are generally insoluble in water. However, the ammonia has lower viscosity than water, and this might be expected to promote greater ionic mobilities and therefore compensate to some extent for the effect of the dielectric constant. So इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि पहले तो लिक्विड रेंज के बारे में कंपैरिजन किया हुआ लिक्विड अमोनिया एंड वाटर के कि इसमें रेंज उसमें उन्होंने बताया लोअर देन दोज ऑफ द वाटर होता है, फिर -77 to 33 होता है. प्रिकॉशंस हैंडलिंग टेक्निक्स कूल्ड वेसल्स में चलते हैं. ठीक है, हैंडलिंग के वगैरह टेक्निक्स होते हैं. हाइड्रोजन बॉन्डिंग में उन्होंने बताया कि क्या कहते हैं अमोनिया liquid ammonia associated through hydrogen bonding was इसमें strong electronegative element nitrogen होता है. However, the ammonia molecules are less strongly associated because the nitrogen is less electronegative than oxygen, and therefore NH bond, OH bond, freezing point and boiling point of the ammonia less होता है. फिर dielectric constant में उन्होंने बताया हुआ है कि it is lower as compared to dielectric is lower as compared to the water, suggesting its lesser tendency to dissolve ionic compounds. Liquid ammonia is therefore a poor solvent for ionic substances. Soluble salts include most ammonium salts, nitrates, thiocyanins, iodines, fluorides, and many oxide salts are generally insoluble in water.
आगे हमारे पास है सेल्फ आयनाइजेशन। बोथ अमोनिया एंड वाटर शो कंपैरिजन सेल्फ आयनाइजेशन रिगार्डेड एज द बिलो। लाइक अमोनिया NH3 लिया, इसका बना NH4 अमोनियम आयन बना और अमाइड बना। वाटर लिया, हाइड्रोनियम आयन बना और हाइड्रोक्सी आयन बना। आगे है हमारे पास, इसमें उन्होंने बताया कि यहाँ पर अमोनिया है तो अमोनियम आयन बना और अमाइड बना। वाटर लिया तो हाइड्रोनियम आयन बना और हाइड्रोक्सी आयन बना। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ना है क्या कहते हैं, द एक्सटेंट ऑफ द ऑटो आयनाइजेशन ऑफ द लिक्विड अमोनिया इज़ लेस देन दोज ऑफ द वाटर। फिर उसके बाद अमोनिया इज़ बेटर सॉल्वेंट देन वाटर। लिक्विड अमोनिया इज़ वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें अमोनिया का बताया हुआ वाटर सॉल्वेंट से कि अमोनिया को कंपेयर किया, फिर वाटर से कि लिक्विड अमोनिया इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द स्पेसिफिक हीट ऑफ द अमोनिया इज़ मोर देन दोज ऑफ द वाटर। लिक्विड अमोनिया इज़ लेस viscous through water. Most salts when dissolved in liquid ammonia conduct electric current better than in water. This is not due to the ionizing power of the ammonia, which is about the 1/3 of the water, but due to the lower viscosity, which greatly increases the mobility of the ions. Liquid ammonia has high crucial temperature and pressure. It is less acidated with than the water. ये सारा लर्निंग वाला काम है आपका, ठीक है। कि पहले वाटर लिक्विड रेंज बताई थी उन्होंने पीछे कि वो -77 टू -33 है। फिर वो लिक्विड अमोनिया को हम स्टोर करते हैं, हैंडलिंग प्रोसेसेस करते हैं, कूल्ड वेसल्स में डालते हैं। फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में उन्होंने इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नाइट्रोजन के बारे में बताया हुआ था कि ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन के बारे में बताया हुआ था। फिर डाइलेक्ट्रिक में उन्होंने बताया हुआ था द डाइलेक्ट्रिक इज लोअर एज कम्पेयर टू द वाटर। उसमें उन्होंने बताया लेसर टेंडेंसी टू फॉर्म द डिजोल्व आयनिक कंपाउंड्स। लिक्विड अमोनिया इज देयरफॉर अ पुअर सॉल्वेंट फॉर द आयनिक सब्सटेंसेस। ठीक है, तो ये सारे लर्निंग वाले काम है। लिक्विड अमोनिया हैज़ द हायर क्रिशियल टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है। लिक्विड अमोनिया फॉर्म्स अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एंड मेटल अमोनिया सॉल्यूशंस विद एल्कली मेटल्स। ठीक है, फिर उसके बाद रिएक्शंस इन लिक्विड अमोनिया like ammonia has water like properties as solvent. It is therefore expected that the reactions which take place in aqueous solutions can also occur in ammonia solutions. ठीक है, some important chemical reactions occurring in the liquid ammonia are below, like acid basic reaction. acid basic reaction में जैसे वाटर लिया, ये NH3 + OH बना। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू द सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, द सब्सटेंसेस हैव प्रोड्यूसिंग NH3 आयन इन द वाटर एक्ट एज एसिड्स एंड OH एक्ट्स एज अ बेस। ये वाटर लिया, NH3 क्या, ये हमारा एसिड है, ये हमारा एसिड है, ये हमारा बेस है, ये हमारा एसिड है, ये हमारा बेस है। फिर उसके बाद फिर NH3 लिया, NH4 और अमाइड बना। ठीक है, ये हमारे पास NH4 एक तरह का लिक्विड अमोनिया बिहेव एज अ एसिड्स हो गया एंड NH2 एक्ट एज अ बेस हो गया। हम यहाँ पर अभी कर रहे हैं रिएक्शन इन लिक्विड अमोनिया। NH3 अमोनिया क्या होता है, NH3। ठीक है, रिएक्शन इन लिक्विड अमोनिया। देखो, हमने पहली रिएक्शन करनी है वाटर को, जब आप करोगे इक्विलिब्रियम पे, तो ये आ गया NH3 + OH। ठीक है, ये हो गया वाटर को लिया होगे इक्विलिब्रियम पे, मतलब कि तो क्या कहते हैं NH3 OH। NH3 क्या है यहाँ पर, NH3 एक एसिड है, एसिड की तरह बिहेव कर रहे हैं, और OH एक्ट्स एज अ बेस हियर। ठीक है, तो वाटर इक्विलिब्रियम पे करोगे NH3O बनेगा और प्लस OH। NH3 क्या एसिड है, OH क्या है, बेस है। आगे लिया था हमने NH3, ये इक्विलिब्रियम पे करोगे NH4 बन जाएगा प्लस NH2 बन जाएगा। NH4 क्या है, एसिड है, एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, और NH2 क्या है, अमाइड है। अमाइड तो है, सॉरी, ये बेस की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये मैंने आपको करवा दिया। उसके बाद NH4Cl लोगे, NH3 NH4 और Cl लोगे, तो ये हो गया। फिर इसमें उन्होंने कहा हुआ है कि जो NH2 मीन्स नाइट्रेट्स बिहेव एज अ बेस हो गया NH2। ठीक है, और क्या कहते हैं
आगे KNH2, ये बना K+NH2 हो गया। फिर इस पर लिथियम अमाइड, सोडियम अमाइड, एल्कलाइन अल्कलाइन मेटल अमाइड्स हैव अ वेरी लो solubility and therefore KNH2 is the commonest base in the liquid NH3। ठीक है, आगे प्रोटोलाइसिस। अभी तक जो हमने पढ़ा वो सारा लर्निंग वर्क है। अब हमने प्रोटोलाइसिस से पढ़ना है। सर्टेन कंपाउंड्स लाइक यूरिया हो गया, एसिटिक अमाइड हो गया, सल्फियमाइड हो गया, विच आर इनकेपेबल ऑफ डोनेटिंग प्रोटॉन्स टू वाटर कैन रेडली डोनेट प्रोटॉन्स टू NH3। ठीक है, विच कैन अनएबल टू डोनेटिंग प्रोटॉन्स टू वाटर एंड कैन रेडली डोनेट प्रोटॉन्स टू NH3 इन लिक्विड अमोनिया। दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड प्रोटोलाइसिस रिएक्शंस। ठीक है, प्रोटोलाइसिस रिएक्शन कौन सी होती है? यूरिया हो गया, एसिडिमाइड हो गया, विच आर अनएबल टू डोनेट प्रोटॉन्स टू द वाटर बट विच कैन डोनेट प्रोटॉन्स टू NH3 इन द लिक्विड अमोनिया, उसको हम प्रोटोलाइसिस रिएक्शन बोलते हैं। हैंस दीज कंपाउंड्स एक्ट एज एसिड्स इन द लिक्विड अमोनिया। प्रोटोलिक रिएक्शन कौन सी होती है? दो लाइक यूरिया हो गया, एसिडिक अमाइड हो गया, विच आर अनकेपेबल ऑफ डोनेटिंग प्रोटॉन्स टू द वाटर बट विच कैन डोनेट प्रोटॉन्स टू द अमोनिया, विच कैन डोनेट प्रोटॉन्स इन द लिक्विड अमोनिया, उसको हम कहते हैं प्रोटोलिक रिएक्शंस। जिसमें कि जो हमारा क्या कहते हैं, दे एक्ट एज अ सच कंपाउंड्स जो एक्ट एज अ एसिड्स इन द लिक्विड अमोनिया की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, आगे देखो, आगे हमने करना है NH2 यूरिया हो गया, C+O NH3 अमोनिया के साथ अटैच किया तो ये NH2CO NH4 बन गया। ठीक है, ऐसे CH3 C+O NH2 NH3 के साथ किया, CH3 C+O NH हो गया, NH4 बन गया। इसमें से दो रिएक्शंस देखते हैं। ये देखो, CNH2 यूरिया, ये यूरिया हो गया, प्लस NH3 अमोनिया होता है, तो ये आपके पास बना CNH2O प्लस NH4 बन गया, NH4। ठीक है, ठीक है, देखो अगला देखो, आगे है क्या कहते हैं, जब NH2S सल्फर के साथ करोगे, ये सल्फामाइड हो गया, O प्लस NH3 हो गया। ठीक है, ये क्या बना आपके पास? ये आपके पास बना NH2 O NH4, ये देखो। ठीक है, उसके बाद अगली एक और एग्जांपल देख लो, जब है CH3 C+O, यहाँ पर NH2 ले लिया प्लस NH3। ठीक है, ये बना CH3C। ठीक है, यहाँ पर है क्या कहते हैं, NH+O प्लस NH4। प्रोटोलिक रिएक्शंस वो होती हैं, दोज लाइक यूरिया हो गया, एसिडिक अमाइड हो गया, सल्फाइड अमाइड हो गया, दोज विच आर इनकेपेबल ऑफ डोनेटिंग प्रोटॉन्स टू द वाटर बट विच कैन डोनेट प्रोटॉन्स इन द लिक्विड अमोनिया, उसको हम प्रोटोलिक रिएक्शंस बोलते हैं। आगे हमारे पास है एसिड बेसिड न्यूट्रलाइजेशन इन एक्वस सॉल्यूशंस। द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ सॉलिड एसिड एंड द स्ट्रॉन्ग बेस इन्वॉल्व्स द कॉम्बिनेशन ऑफ NH3 फॉर्म द एसिड एंड OH फॉर्म्स द बेस। ठीक है, हमने वाटर के पीछे रिएक्शन की जो कि NH3 बना देता है एंड NH3O बना देता है प्लस OH बना देता है। NH3O क्या होता है? एसिड होता है। OH क्या होता है? बेस होता है। ठीक है, सो देखो HCl हो गया, HCl को NaOH के साथ करोगे, NaCl प्लस वाटर हो गया, Na3O प्लस OH, ये वाटर बन गया। आगे करनी एसिड बेसिड न्यूट्रलाइजेशन इन एक्वस सॉल्यूशंस। द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड द स्ट्रॉन्ग बेस इन्वॉल्व्स द कॉम्बिनेशन ऑफ NH3O फ्रॉम द एसिड एंड द OH फ्रॉम द बेस। पीछे प्रोटोलिक रिएक्शन बता दी थी कि दोज यूरिया हो गया, सल्फाइड अमाइड हो गया, विच आर अनकेपेबल ऑफ डोनेटिंग प्रोटॉन्स टू द वाटर विच कैन डोनेट प्रोटॉन्स टू द इन द लिक्विड अमोनिया, उसको प्रोटोलिक रिएक्शन बोलते हैं। अब हमने करना है एसिड बेसिड न्यूट्रलाइजेशन। एसिड बेसिड न्यूट्रलाइजेशन
देखो एसिड बेसिस न्यूट्रलाइजेशन को देखो, जब वाटर के साथ किया हमने, ये हमारा इक्विलिब्रियम पे टेन करोगे, ये आ गया NH3 + OH। ठीक है, यहाँ पर NH3 क्या होता है, एक एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, और OH क्या है, बेस है। ठीक है, ये हो गया। अब उसकी दूसरी एग्जांपल देखो, जब HCl को NaOH के साथ करोगे क्या बनेगा, जब HCl को NaOH के साथ करोगे क्या बनेगा, ये बनेगा आपके पास NaCl + वाटर, ये होगा। ठीक है, अब उसके बाद दूसरी आ गया, इन द सिमिलर वे द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेसिड, ये मैंने आपको करवा ही दिया है, ये आपको मैंने करवा दिया है ना। क्या कहते हैं कि जब वाटर और ये NH3O + OH बनेगा, NH3O क्या बनेगा, एसिड है, OH क्या बेस है। उसके बाद अगली रिएक्शन देखो, जब NH4Cl को प्लस KNH2 के साथ करोगे, KNH2 के साथ करोगे तो ये आपको बनेगा KCl + NH2 बन जाएगा अमाइड। ठीक है, ये हमारा एसिड की तरह बिहेव कर दिया, ये हमारा अमाइड हमारा बेस की तरह बिहेव कर दिया। ठीक है, ये हमारा बेस की तरह बिहेव कर दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये हमारा ये करो, ये देखो, जब NH4Cl को प्लस यहाँ पर KNH2 लिएगा तो ये क्या बनेगा, KCl बनेगा, प्लस आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास बनेगा NH2। आगे रिएक्शन है हमारे पास, जिंक NH3 NH2 2 NH4Cl, ये देखो ये बना जिंक NH2 NH4Cl, ये बना जिंक Cl2 और साथ में NH3। ठीक है, क्या रिएक्शन है देखो ध्यान से, दोबारा बताती हूँ। ये रिएक्शन है जिंक NH2 प्लस क्या कहते हैं NH4Cl, ये आपके पास बना जिंक Cl2 प्लस NH3। ठीक है, फिर अगली रिएक्शन हमारे पास है, अगली रिएक्शन देखो, जब आप जिंक हाइड्रोक्साइड को, ये हाइड्रोक्साइड है ना, प्लस HCl के साथ करोगे तो ये जिंक Cl2 बन जाएगा, साथ में वाटर बन जाएगा, साथ में वाटर बन जाएगा। ठीक है, ये बेस की तरह एक्ट कर रहा है, बेस की तरह। ठीक है, सो देयर आर मेनी एग्जांपल ऑफ एम्फोटेरिक बिहेवियर इन द लिक्विड अमोनिया, द कंपाउंड्स दे डिसॉल्व बोथ इन द लिक्विड बोथ इन द एसिड एंड बेसिस आर एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, जिसमें एसिड भी होता है और बेस भी होता है। एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, इसमें एसिड भी होता है, बेस भी होता है, इनको एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आपको मैंने ये करवाई दिया, बेस और एसिड, उसको हम कहते हैं। ठीक है, जिस एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, जिसमें एसिड भी होता है, एसिड प्लस बेस दोनों होता है, उसको एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस बोलते हैं। एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस, एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। ठीक है, लाइक द जिंक क्या कहते हैं, जिंक NH2 2 NH4Cl, ये आपका एसिड की तरह बिहेव कर दिया, ये आपका एसिड की तरह बिहेव कर दिया। ठीक है, जिंक NH2 और साथ में NH4Cl, ये आपका बेस की तरह बिहेव कर दिया, ये आपका बस बना जिंक Cl2 साथ में NH3। दूसरा देख लो एग्जांपल, जब जिंक OH2 को आप क्या कहते हैं HCl के साथ करोगे तो ये आपके पास बनेगा जिंक Cl2 साथ में वाटर। ठीक है, ये आपका एसिड हो गया, ये आपका बेस का, एसिड बेसिस को एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस बोलते हैं। आगे देखो, जब आप एसिड और बेस को साथ में करोगे तो ये देखो जिंक NH2 KNH2 बन जाएगा, तो ये आ गया K2 जिंक NH2 4 हो गया। फिर जिंक हाइड्रोक्साइड को KOH के साथ करोगे, K2 जिंक O2 प्लस वाटर बन जाएगा। ठीक है, द एसिड्स गिव NH4 आयंस एंड द बेसिस गिव NH2 आयंस। ठीक है, इन द लिक्विड अमोनिया एसिड क्या देते हैं, NH4 आयंस देते हैं, एसिड क्या देते हैं, NH4 आयंस देते हैं, बेस क्या देते हैं, NH2 आयंस देते हैं। ठीक है, लिक्विड अमोनिया में अमोनिया के लिक्विड अमोनिया में
NH4 जो है हमारा एसिड देता है, ठीक है, और NH2 हमारा बेस देता है। ये देखो, ठीक है, NH2 क्या देता है? बेस देता है। NH4 क्या देता है? एसिड देता है। हमने अभी तक पढ़ा कि प्रोटोलाइसिस क्या होता है। प्रोटोलाइसिस में यूरिया होता है, सल्फर अमाइड होता है, जिसमें दीज आर अनएबल टू कैपेबल, दीज आर अनकैपेबल ऑफ डोनेटिंग प्रोटॉन्स टू द वाटर, बट दे कैन डोनेट प्रोटॉन्स इन द लिक्विड अमोनिया। उसको हम प्रोटोलाइसिस रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें मैंने आपको फिर एसिड बेस रिएक्शन बताई। एसिड बेस रिएक्शन में एसिड और बेस दोनों होते हैं, जिसमें वाटर को करोगे इक्विलिब्रियम पे तो H3O प्लस OH हो जाएगा। H3O क्या होगा? एसिड की तरह बिहेव करता है। OH क्या होगा? बेस की तरह बिहेव करता है। फिर एम्फोटेरिक कौन से होते हैं? एसिड और बेस दोनों होते हैं, उसको एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस बोलते हैं। NH4 एसिड में NH4 आयंस हमारा लिक्विड अमोनिया में NH4 एसिड की तरह बिहेव करता है, NH2 हमारा बेस की तरह बिहेव करता है। आगे हमने करना है रिएक्शंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। द अमाइनो एसिड्स इज अ सब्सटेंस दैट फर्निश NH आयंस इन द लिक्विड अमोनिया, ठीक है, दैट फर्निश क्या कहते हैं? NH4 आयन इन द लिक्विड अमोनिया। अमोनियम हाइलाइड्स, नाइट्रेट और द थायोसाइनेट्स आर वेरी soluble in water are very soluble in liquid ammonia, giving NH4 ions, and their concentrated solutions act as a amino acids. We know that the acids give hydrogen with the metals in the aqueous solutions, ठीक है। In the similar way, the amino acids, ammonium salts in the liquid NH3 react with the alkali and other metals to give the hydrogen, ठीक है। देखो, जब सोडियम को NH4Cl के साथ करोगे NaCl बनेगा, NH3 बनेगा प्लस वाटर बनेगा। मैग्नीशियम को NH4Cl के साथ करोगे, मैग्नीशियम Cl2 बनेगा, NH3 बनेगा प्लस वाटर बनेगा। ये देखो, जब सोडियम को NH4Cl के साथ करोगे तो हमारे पास NaCl बनेगा, NH3 बनेगा प्लस H2 बनेगा, ठीक है। जब मैग्नीशियम को NH4Cl के साथ करोगे तो ये मैग्नीशियम Cl2 बनेगा, NH3 बनेगा प्लस H2 बनेगा, ठीक है। जब सोडियम को NH4Cl के साथ करोगे NaCl बनेगा, NH2 बनेगा, NH3 अमोनिया बनेगा और H2 बनेगा, ठीक है। ऐसे ही मैग्नीशियम का। उसके बाद है जब आप सेचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट को इन द अमोनिया ऑल्सो डिजॉल्व मैनी मेटल ऑक्साइड्स, जैसे Na2O। सोडियम ऑक्साइड्स को जब NH4Cl के साथ करोगे NaCl, NH3 और यहाँ पर वाटर बनेगा। वहाँ पर हाइड्रोजन बना था ना, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने कहा था मोनो एसिड जब रिएक्ट करेंगे अल्कली मेटल के साथ तो फिर अदर मेटल के साथ जो हाइड्रोजन देंगे, वहाँ पर हमारे पास यहाँ पर वाटर बनेगा। हमने रिएक्शन की, जब हमने सोडियम को NH4Cl के साथ किया तो ये हमारे पास NaCl बना, NH3 बना और प्लस H2 बना, ठीक है। फिर हमने की रिएक्शन Mg NH4Cl के साथ किया तो MgCl2 बना, NH3 बना और साथ में H2 बना, ये देखो, एक मिनट ये देखो, ठीक है। जब Na सोडियम को NH4Cl के साथ किया NaCl बना, अमोनिया बना और H2 बना। ऐसे ही हमारे पास मैग्नीशियम के आगे है कि जब Na2O सोडियम ऑक्साइड को जब आप NH4Cl के साथ करोगे, ये देखो, Na2O प्लस NH4Cl के साथ करोगे तो NaCl बनेगा प्लस NH3 बनेगा प्लस हमारे पास यहाँ पर वाटर बनेगा, ठीक है। जब कैल्शियम ऑक्साइड को NH4Cl के साथ करोगे तो फिर आपके पास यहाँ पर कैल्शियम Cl बनेगा 2, ठीक है, प्लस हमारे पास क्या कहते हैं यहाँ पर NH3 बनेगा और प्लस फिर हमारे पास यहाँ पर वाटर बनेगा। ये दोनों रिएक्शन देख लो, मैंने करवा दी आपको दोनों, ठीक है। आगे देखो, जब आप मैग्नीशियम 2 सिलिकॉन को NH4Br के साथ करोगे, सिलिकॉन H4 हो जाएगा, साथ में मैग्नीशियम Br2 बन जाएगा, NH3 बन जाएगा।
जब सिलियन को और एसिडीन को करोगे। जैसे अब देखो मैग्नीशियम 2 सिलियन, ये सिलियन है, ठीक है, ये देखो सिलियन है। मैग्नीशियम 2 CSI, ये सिलिकॉन मत समझना, सिलियन है, ठीक है। SI क्या है, सिलिकेन, सिलियन, ठीक है। जब देखो बताती हूँ, जब अब मैग्नीशियम सिलियन, SI क्या है, सिलियन, ठीक है। तो मैग्नीशियम 2 सिलियन को जब NH4Br के साथ करोगे तो ये आपके पास बनेगा सिलियन H4 हो जाएगा, साथ में आपके पास मैग्नीशियम Br2 बन जाएगा और साथ में अमोनिया बन जाएगा NH3। जब मैग्नीशियम 2 सिलियन को जब NH4Br के साथ करोगे तो ये आपके पास यहाँ पर बन जाएगा सिलियन H4 बन जाएगा, मैग्नीशियम Br2 बन जाएगा, साथ में NH3 बन जाएगा, ठीक है। आगे हमारे पास है Na3AS। AS का मतलब क्या है, एसिडीन, एसिडीन, एसिडीन है, ठीक है। तो देखो NH3AS को जब NH4Br के साथ करोगे तो ये आपके पास बनेगा AS रिकॉर्ड रहा है एक, ये बनेगा ASH3, ठीक है, साथ में NaBr और साथ में अमोनिया, ठीक है, अमोनिया। ये देखो जब आप Na सोडियम को NH4Cl के साथ करोगे NaCl प्लस NH3 प्लस H2 बनेगा। मैग्नीशियम को NH4Cl के साथ करोगे मैग्नीशियम Cl2 NH3 और साथ में प्लस H2 बनेगा। फिर Na2O NH4Cl के साथ करोगे NaCl अमोनिया बनेगा प्लस वाटर बनेगा। उसके बाद मैग्नीशियम 2 सिलियन प्लस NH4Br को करोगे तो सिलियन प्लस मैग्नीशियम Br2 बनेगा, NH3 बन जाएगा, ठीक है। आगे देखो रिएक्शंस ऑफ द अमाइनो बेसिस, अमाइनो एसिड्स वो होते हैं जिसमें फर्निश NH4 आयंस करते हैं, ठीक है। यहाँ पर अमाइनो बेसिस वो होते हैं विच गिव्स, ठीक है, इन विच द लिक्विड अमोनिया सॉल्यूशन गिव्स NH2 आयन, ठीक है। अब देखो मैग्नीशियम मैग्नीशियम AgNO मैग्नीशियम कह रही हूँ, क्या कहते हैं AgNO3 को KNH2 के साथ करोगे KNO3 हो जाएगा, AgNH2 बन जाएगा, सिल्वर अमाइड बन जाएगा, ठीक है। AgNO3 को KNH2 के साथ करोगे KNO3 हो जाएगा, AgNO2 हो जाएगा। PbI2 को KNH2 के साथ करोगे कि PbNHKI प्लस HI हो जाएगा। IbKHNO2 को BiN ब्लूथन नाइट्रेट प्लस HI बन जाएगा। HgI2 को 6KH2 के साथ करोगे Hg3NH2 म्यूरिक नाइट्रेट KI प्लस NH3 बन जाएगा, ठीक है। आगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, आगे हमारे पास है complex formation reaction. Many complex formation reaction in the liquid ammonia are reported with the similar reactions occurring in the aqueous system. ठीक है, जब जिंक NH3 2 को KNH2 के साथ करोगे insoluble जिंक NH3 2 KNO3 बनेगा, ठीक है। जिंक NH2 को KNH2 को K2 जिंक NH2 4 बनेगा, ठीक है। फिर जिंक NH3 2 को NaOH के साथ करोगे तो जिंक हाइड्रोक्साइड 2 इनसॉल्युबल साथ में NaNO3 बनेगा, ठीक है। ये देखो कितनी सारी रिएक्शंस लिखी हुई हैं, पर इसमें से आप 2-3 याद कर लेना, ठीक है, ठीक है। तो इसमें उन्होंने कहा है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस में उन्होंने बताया हुआ है कि लिक्विड अमोनिया में विच आर सिमिलर इन रिएक्शंस अकरिंग इन द एक्वस सॉल्यूशंस। जैसे जिंक नाइट्रेट को जब आप पोटेशियम अमाइड के साथ करोगे, जिंक नाइट्रेट को जब आप पोटेशियम अमाइड के साथ करोगे तो हमारे पास इनसॉल्युबल जिंक अमाइड बनेगा, ठीक है। इन सेस टू डिजॉल्व विद द अमाइड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस ऑफ जिंक, ठीक है। आगे है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ अमाइनोमेट्स, ठीक है। जस्ट एज वाटर फॉर्म हाइड्रेट्स अमोनिया ऑल्सो फॉर्म अमाइनोमेट्स विद मैनी इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, ठीक है। लाइक इन दिस कंपाउंड्स द अमोनिया मॉलिक्यूल्स आर कोऑर्डिनेटेड टू कटाइन,
ठीक है। इसकी एग्जांपल देखो, जैसे BF3NH3 को लोगे BF3.NH3 बन जाएगा, मतलब कटाइन की तरह एक्ट करेगा। तो यहाँ पर जैसे सिली F4 लोगे NH3 तो सिली F4 मतलब सिलियन F4 और NH2.2NH3 बन जाएगा। आगे है हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन। अच्छा, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? मैंने ऑक्सीडेशन रिडक्शन बताया था, जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होती है, इसमें रेडॉक्स रिएक्शन होती है। अब रेडॉक्स रिएक्शन में क्या लिखा है? लिक्विड अमोनिया एक्ट्स एज एन एक्सीलेंट मीडियम फॉर द रेडॉक्स रिएक्शन। लिक्विड अमोनिया NH3 क्या होता है? अमोनिया। लिक्विड अमोनिया कहता है एक्सीलेंट मीडियम है फॉर द रेडॉक्स रिएक्शन। इन द लिक्विड अमोनिया द ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज वीकर देन इन द वाटर सोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल in the liquid ammonia, for example the NH3O in the liquid ammonia does not act as an oxidizing agent. Oxidizing agent वो होता है जो those who accept the electrons, ठीक है। कि यहाँ पर कहते हैं HNO3 does not act as a oxidizing agent. Oxidizing agent वो होता है which accept the electrons, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर does not act as a oxidizing agent. KMnO4 in the liquid ammonia act as a very weak oxidizing agent. On the other hand, reducing agent shows increased reactivity, ठीक है। तो alkali metal act as a very powerful reducing agent in liquid ammonia. For example, like copper I Na को लोगे सोडियम के साथ करोगे कॉपर प्लस NaI बन जाएगा, ठीक है। KMnO4 को K के साथ करोगे K2 KMnO4 हो जाएगा। सो पहले मैंने आपको ये प्रोटोलाइजेशन रिएक्शन प्रोटोलाइजेशन बारे बताया कि वो जो होता है कि सर्टन कंपाउंड्स लाइक द यूरिया एंड एसिटिकमाइड्स सल्फरमाइड एंड विच आर इनकेपेबल ऑफ डोनेटिंग प्रोटॉन्स टू द वाटर विच कैन डोनेट प्रोटॉन्स टू द NH3 अमोनिया इन द लिक्विड अमोनिया, उसको प्रोटोलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। फिर मैंने ये रिएक्शन सारी करवाई, फिर एसिड बेसिस रिएक्शन में करवाई कि जब वाटर को आप इक्विलिब्रियम पे करोगे NH3O प्लस OH होगा। NH3O क्या होता है? हमारे पास एक एसिड की तरह बिहेव करता है, OH एक बेस की तरह एक्ट करता है। फिर हमारे पास एसिड बेसिस रिएक्शन को एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस बोलते हैं, ये रिएक्शन आपको समझाई। फिर ये अमाइनो एसिड्स वाली बताई कि Na सोडियम को NH4Cl के साथ करोगे NaCl प्लस NH3 प्लस OH2 हो जाएगा। फिर सोडियम ऑक्साइड को जब NH4Cl के साथ करोगे NaCl प्लस NH3 प्लस वाटर हो जाएगा। फिर मैग्नीशियम 2 सिलिकॉन को NH4Br के साथ करोगे सिलियन प्लस मैग्नीशियम Br2 NH3 बन जाएगा। अमाइनो बेसिस वो होते हैं विच गिव NH2 आयन, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर है क्या कहते हैं, यहाँ पर है AgNO3 प्लस KNH2 को KNO3 के साथ मैग्नीशियम NH2 के साथ कर दोगे, ठीक है। आगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन देखते हैं। पहले मैंने यहाँ तक आपको करवाया, फिर मैंने आपको कम्प्लेक्स रिएक्शंस बताई। कम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन करवाई। कम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन में फिर मैंने आपको कम्प्लेक्सेस के बारे में बताया, इसमें 2-3 रिएक्शन याद कर लेना। फिर अमाइनो रेट्स के बारे में बताया कि ये कटाइन दैट कोऑर्डिनेटेड टू फॉर्म द कटाइन बनाते हैं। फिर डॉक्स रिएक्शन में बताया कि ये NH3 इन द लिक्विड अमोनिया डज नॉट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। KMnO4 इन द लिक्विड सोल्यूशन वेरी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। रिड्यूसिंग एजेंट इंक्रीज द रिएक्टिविटी, बढ़ा देते हैं लिक्विड अमोनिया में, ठीक है। तो एल्कली मेट एक वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स हो गए लिक्विड अमोनिया में, ये इसकी रिएक्शन है। आगे हम पढ़ते हैं। आगे है द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ लिक्विड अमोनिया इज़ वेरी लो। इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी अ पुअर सॉल्वेंट फॉर द आयनिक सब्सटेंसेस। कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लो होता है लिक्विड अमोनिया में, कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिक्विड अमोनिया में लो होता है। देयरफॉर इट इज एक्सपेक्टेड टू पुअर सॉल्वेंट फॉर द आयनिक सब्सटेंसेस अमंगेस्ट द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑल द अमोनियम सॉल्ट्स नाइट्रेट्स thionsins अनआयोडेट्स आर soluble in liquid ammonia. Oxide, hydroxides, carbonate, phosphates, sulfates and the most sulfides are insoluble. Most phthalides are insoluble in liquid ammonia and the solubility among the halides is the पहले फुलीन होगा, फिर क्लीन होगा, फिर ब्रोमीन होगा, फिर आयोडीन होगा। फुलीन कोलिन बुलीन आयोडीन, फुलीन कोलिन ब्रोमाइड आयोडीन, ठीक है। मोस्ट ऑफ द आयोडीन आर soluble in and calcium and zinc colloids which are extremely insoluble in water and are quite insoluble in ammonia, ठीक है। organic compounds such as the halogen compounds, alcohols, ketones, esters, simple ethers, phenols, amines, nitro compounds are readily insoluble in liquid ammonia. Aromatic hydrocarbons are strongly soluble. Perfects and benzenes are not soluble. Paraffins,
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में उन्होंने लिक्विड अमोनिया बताया कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का लो होता है। फिर उन्होंने बताया कि पुअर सॉल्वेंट फॉर द आयनिक सब्सटेंसेस होता है। फिर उन्होंने इसमें नाइट्रेट्स, थायोनिन्स ये बताया कि ये सारे सॉल्युबल होते हैं, आयोडाइड्स। फिर उसके बाद ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स जिसमें सल्फर, उन्होंने बताया कि ये मोस्टली सल्फाइड्स इनसॉल्युबल इन वाटर सॉल्युबल होते हैं, इनसॉल्युबल इन लिक्विड अमोनिया होते हैं। फिर उसके बाद मोस्ट फ्लोराइड्स आर इनसॉल्युबल इन लिक्विड अमोनिया बताया हुआ है। फिर उसके बाद उन्होंने इसका रिएक्टिविटी इन द सॉल्युबिलिटी अमंग हैलाइड्स का बताया। फुलीन होता है, क्लीन होता है, ब्रोमाइड होता है, आयोडाइड होता है। फिर आयोडाइड सॉल्युबल होते हैं ज़्यादातर। जिंक क्लोराइड्स एक्सट्रीमली सॉल्युबल इन वाटर होते हैं बट क्वाइट इनसॉल्युबल इन लिक्विड अमोनिया। कहते हैं जो जिंक क्लोराइड्स होते हैं वो ज़्यादातर पानी में सॉल्युबल होते हैं बट क्वाइट इनसॉल्युबल इन अमोनिया। ठीक है। फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक अल्कोहल्स हो गए, इथर हो गए, सिंपल हो गया, फिनोल्स हो गया, नाइट्रो कंपाउंड्स हो गया, सॉल्युबल इन लिक्विड अमोनिया। आगे है हमारे पास अमंगस द एलिमेंट्स मेटल्स लाइक मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, कैल्शियम, ला, ई, एमन। तो एक्सेप्ट आर ओनली स्लाइटली सॉल्युबल इन लिक्विड अमोनिया। एल्कली मेटल्स एंड एल्कलाइन अर्थलाइट मेटल्स आर हाईली सॉल्युबल इन लिक्विड अमोनिया। ठीक है। फिर उन्होंने इसमें इसकी प्रॉपर्टीज़ बताई सॉल्यूशंस ऑफ द एल्कली मेटल लिक्विड अमोनिया में कि ये उन्होंने बताया कि दीज आर द हैव द लिक्विड अमोनिया में एबिलिटी डिजॉल्व एल्कली मेटल्स। फिर गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स होते हैं, ब्लू कलर के होते हैं, दे आर ब्लू इन कलर होते हैं एंड द कलर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मेटल डिजॉल्व होता है या दीज आर ब्लू इन कलर। ब्लू इन कलर होते हैं एंड द कलर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मेटल डिजॉल्व होते हैं। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ मेटल इज इंक्रीज द कलर चेंजेस टू ब्रॉन्ज टू शोज द मेटेलिक अपीयरेंस। ठीक है। कलर चेंजेस टू ब्रॉन्ज हो जाता है एंड मेटेलिक अपीयरेंस दिखाता है। ये ब्लू कलर के होते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ द मेटल डिजॉल्व होते हैं। दीज सॉल्यूशंस आर मतलब जब मेटल का कंसंट्रेशन बढ़ जाती है कलर चेंज होता है, ब्रॉन्ज से शोज द मेटेलिक अपीयरेंस दिखाता है। सॉल्यूशंस आर कंडक्टिंग होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उन्होंने बताया। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज होती है। पैरामैग्नेटिक होते हैं, पैरामैग्नेटिक करेक्टर दिखाते हैं, डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन। इफ द रीजन्स आर प्योर एंड ड्राई द सोडियम सॉल्यूशंस इन द लिक्विड अमोनिया आर स्टेबल होते हैं एंड कैन बी प्रिजर्व फॉर सेवरल डेज। ठीक है। व्हेन द एल्कली मेटल्स आर डिजॉल्व इन लिक्विड अमोनिया दे आयनाइज टू गिव मेटल आयंस होते हैं एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। ठीक है। बाकी हम करेंगे कल। सो प्लीज़ गो थ्रू दिस वीडियो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ गो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से स्टार्ट करेंगे और आगे करेंगे। आज हमने लिक्विड अमोनिया के बारे में पढ़ा। लिक्विड अमोनिया में पहले हमने बताया कि ये नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स में आते हैं जो कि नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स अदर देन वाटर होते हैं। फिर ये लिक्विड रेंज के बारे में बताया। लिक्विड रेंज में 177 to 33 डिग्री सेल्सियस तक उन्होंने बताया कि हैंडलिंग प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया। लिक्विड अमोनिया में कि लोअर देन दोज ऑफ द वाटर होते हैं। फिर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट उसके। फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में मैंने आपको बताया कि इसकी लिक्विड अमोनिया में कि ये हाईली क्या कहते हैं थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ये हाई स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोनेगेटिव थ्रू एलिमेंट होते हैं नाइट्रोजन। अमोनिया मॉलिक्यूल्स आर लेसली एसोसिएटेड विद बिकॉज द नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है दैन द ऑक्सीजन से। फिर इसके बाद OH बॉन्ड के बारे में बताया हुआ है। फिर फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द अमोनिया लेस होता है। फिर इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में बताया कि कंपेरेटिवली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का अमोनिया का लोअर होता है दैन वाटर से। फिर लेसर टेंडेंसी टू डिजॉल्व द आयनिक कंपाउंड्स के बारे में। फिर लिक्विड अमोनिया आर देयरफॉर अ पुअर भी मतलब कि पुअर सॉल्वेंट होते हैं फॉर आयनिक सब्सटेंसेस के बारे में हमने पढ़ा। फिर उसके बाद हमने लिक्विड अमोनिया की इसकी प्रॉपर्टीज ज़्यादा देन वाटर बताया हुआ है कि लिक्विड अमोनिया एक पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लिक्विड अमोनिया एक हीट ऑफ अमोनिया अदर इज मोर देन वाटर होता है। फिर लिक्विड अमोनिया हैज़ द हायर क्रूशियल टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है। लिक्विड अमोनिया हैव फॉर्म्स द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग मेटल अमोनिया सॉल्यूशंस विद एल्कली मेटल्स। फिर लिक्विड अमोनिया में मैंने बेसिक रिएक्शन बताई कि जब वाटर को इक्विलिब्रियम पे करोगे तो आपके पास NH3O प्लस OH बनेगा। NH3O क्या एसिड है, OH क्या बेस है। फिर इसकी डिफरेंट है। प्रोटोलाइसिस में बताया कि यूरिया एसिडिक अमाइड इनकेपेबल ऑफ डोनेटिंग प्रोटॉन्स टू द वाटर बट ये इनकेपेबल ऑफ डोनेटिंग प्रोटॉन्स टू द वाटर बट विच कैन डोनेट प्रोटॉन्स टू द NH3 इन द लिक्विड अमोनिया के बारे में बताया हुआ है। फिर मैंने आपको प्रोटोलाइसिस की रिएक्शन करवाई। फिर मैंने आपको एसिड बेसिस की रिएक्शन एसिड बेसिस न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन करवाई बेस और एसिड में। फिर मोनो एसिड्स में बताया मोनो एसिड्स में जिसमें फर्निश कर देते हैं मोनो अमाइनो एसिड्स में कि अमाइनो एसिड में
में सब्सटेंस एक NH4 जो इसमें फर्निश कर देता है लिक्विड अमोनिया को। फिर उसके बाद में उसकी रिएक्शंस करवाई, फिर रिएक्शंस ऑफ माइनर बेसिस में जिसमें वो लिक्विड अमोनिया में सोल्यूशन गिव्स NH2 आयन दे देता है। फिर उसकी रिएक्शन कराई, फिर कल हम करेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। फिर मैंने आपको कम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन बताई। इसमें बताया गया है कि जब जिंक नाइट्रेट को आप पोटेशियम अमाइड के साथ करोगे तो इनसॉल्युबल जिंक अमाइड बनेगा जो कि डिजॉल्व होगा सेस अमाउंट ऑफ द अमाइड से फॉर्मेशन ऑफ कम्प्लेक्सेस बनाएगा। फिर रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में बताया कि रिडॉक्स रिएक्शन में KHNO3 एक लिक्विड अमोनिया में डज नॉट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है दोज हू एक्सेप्ट द लैक्टोज। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया क्या कहते हैं KMNO4 में लिक्विड अमोनिया वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑन द अदर हैंड रिड्यूसिंग एजेंट इंक्रीज द एक्टिविटी बता रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि एक एल्कली मेटल में एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है लिक्विड अमोनिया में। फिर उसकी रिएक्शन कर लेना। फिर सोल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया में मैंने आपको बताया कि इसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लो होता है, पुअर सॉल्युबिलिटी फॉर द आयोडिक सब्सटेंसेस। फिर उसके बाद इसमें अमोनियम सॉल्ट, नाइट्रेट, थायोसिन्स, आयोडाइड्स आर सॉल्युबल इन लिक्विड अमोनिया। ऑन द अदर हैंड ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड्स, सल्फेट, सल्फाइड आर इनसॉल्युबल होते हैं। फिर मोस्ट फ्लोराइड्स भी इनसॉल्युबल इन लिक्विड अमोनिया होते हैं। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, फिर उसके बाद सॉल्युबिलिटी मंग हलाइड्स बताए, क्लीन हो गया, ब्रोमाइड हो गया, आयोडाइड हो गया। फिर उसके बाद कैल्शियम एंड जिंक क्लोराइड्स आर क्या कहते हैं इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं बट क्वाइट सॉरी कैल्शियम एंड जिंक क्लोराइड्स जो होते हैं ना यहाँ पर ये वो लिखा हुआ है कि एक्सट्रीमली सॉल्युबल इन वाटर होते हैं बट क्वाइट इनसॉल्युबल इन अमोनिया होते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद बताइए कि इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लो होता है। इसमें नाइट्रेट और थायोसाइंस, आयोडाइड्स ये सॉल्युबल इन लिक्विड अमोनिया होते हैं। ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर सॉल्युबल होते हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडाइड ये बताया हुआ है। फिर उसके बाद मोस्ट ऑफ द आयोडाइड्स सॉल्युबल होते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने सॉल्यूशंस ऑफ एल्कली मेटल्स इन लिक्विड अमोनिया के बारे में बताया हुआ है। ये लिक्विड अमोनिया में एल्कली मेटल्स ब्लू इन कलर होते हैं, कलर ऑफ द इंडिपेंडेंट होते हैं। फिर कंसनट्रेशन जब इंक्रीज होती है तो कलर इसका चेंज होता है। ब्रॉन्ज से शो मेटालिक अपीयरेंस दिखाते हैं। सॉल्यूशंस कंडक्टिंग सॉल्यूशंस क्या करते हैं कंडक्टिंग एंड शोइंग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। पैरामैग्नेटिक होते हैं, पैरामैग्नेटिक डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग कंसंट्रेशंस। फिर ये लिक्विड अमोनिया में एल्कली मेटल्स में गिव आयंस देते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। ठीक है, आज हमने यहाँ तक किया। फिर उसके बाद हम कल करेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। ठीक है, आज मैंने आपको सॉल्यूशंस ऑफ एल्कली मेटल्स इन लिक्विड अमोनिया करवाया जो कि ब्लू इन कलर होते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ मेटल डिजॉल्व होते हैं। फिर कंसंट्रेशन जब इसकी बढ़ जाती है कलर चेंज होता है, ब्रॉन्जिश मेटालिक अपीयरेंस दिखाते हैं। फिर इसमें सॉल्यूशंस कंडक्टिंग होते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। पैरामैग्नेटिक होते हैं, पैरामैग्नेटिक डिक्रीज विद इंक्रीजिंग कंसंट्रेशंस। ठीक है, फिर उसके बाद एल्कली मेटल्स में लिक्विड अमोनिया में आयंस देते हैं, गिव आयंस देते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। ठीक है, सो प्लीज़ गो थ्रू दिस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ मेरी प्रीवियस वीडियो भी जाकर देखो, टुडेज़ वीडियोस भी देखो, सारी वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, समझ आता है तो प्लीज़ कमेंट भी किया करो ताकि मुझे पता लगे कि आपको समझ आ रहा है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रीवियस वीडियोज़ को भी जाकर देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और टुडेज़ वीडियो को भी देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।